Today we are going to discuss stream cipher. Stream cipher is another category of ciphers we can apply for cryptography. A stream cipher encrypts plain text one byte at a time. Although a stream cipher may be designed to operate on one byte at a time or on units larger than a byte at a time. In the structure of stream cipher, a key is input to pseudo-random bit generator that produces a stream of 8 bits numbers that are apparently random. The output of the generator, called a key stream, is combined one byte at a time with the plain text stream using the bitwise exclusive OR operation. For example, if the plain text, here we have 11001100. If the next byte generated by the generator is 01101100 and the next plain text byte is this, the resulting cipher text byte is like here we have plain text. तो इस plain text को हम XOR करेंगे key stream के साथ और key stream से जो result होगा that would be the cipher text. और decryption के लिए जो key stream होगी उसी को जो हमारे पास सूडो रैंडम सीक्वेंस है उसी को हम एक्सऑर करेंगे की स्ट्रीम के साथ, तो हमें प्लेन टेक्स्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा. ये एक स्ट्रीम साइफर की डायग्राम है. इसमें हमारे पास ये की है, की जो है वो उससे जनरेट होती है, सूडो रैंडम बाइट जनरेटर को ये फीड होगी और ये की स्ट्रीम को जनरेट करेगा. जो की स्ट्रीम होगी वो XR होगी प्लेन टेक्स्ट बाइट के साथ और ये इनक्रिप्ट होके साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा. जब साइफर टेक्स्ट को हमने रिकवर करना है, जब हमने उसकी डिक्रिप्शन करनी है, तो उसको अगेन हम XOR करेंगे विद द की स्ट्रीम और जो हमें डिक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट जो बाइट है वो रिसीव हो जाएगी. तो इस तरह स्ट्रीम साइफर काम करते हैं. स्ट्रीम साइफर जो है इसमें जो की स्पेस है वो लार्ज है. इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो एक डिटर्मिनिस्टिक स्ट्रीम ऑफ बिट्स दैट इवेंचुअली रिपीट्स वो प्रोड्यूस होती है. अ सूडो रैंडम नंबर जनरेटर uses a function that produces a deterministic stream of bits that eventually repeats. The longer the period of repeat, the more difficult it will be to do cryptanalysis. This is essentially the same consideration that was discussed with reference to Wigner cipher, namely that the longer the keyword, the more difficult the cryptanalysis. The key stream should approximate the properties of a true random number stream as close as possible. For example, there should be an approximately equal number of ones and zeros. If the key stream is treated as a stream of bytes, then all of the 256 possible bytes value should appear approximately equal often. The more random appearing the key stream is, the more randomized the ciphertext is, making ciphertext more difficult. Note from figure 8.7 that the output of pseudo-random number generator is conditioned on the value of the input key. To guard against brute force attacks, the key needs to be sufficiently long. The same consideration that apply to block cipher are valid here. Thus, with current technology, a key length of at least 128 bit is desirable. तो स्ट्रीम साइफर में जो की लेंथ है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी जो की स्ट्रीम है वो क्या जनरेट होती है. फॉर द टाइम बीइंग अभी जो क्रिप्टोग्राफी है इसमें 128 बिट जो की लेंथ है वो रिक्वायर्ड है. अगर हमारे पास एक सूडो रैंडम नंबर प्रॉपरली डिजाइंड हो
तो जो एक स्ट्रीम साइफर है उसको हम उतना ही सिक्योर कंसीडर कर सकते हैं जितना कि एक ब्लॉक साइफर है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो की लेंथ है वो कंपेरेबल है। लाइक AES में हमारे पास जो की लेंथ है वो 128 बिट है, तो इसमें भी अगर हम 128 बिट की लेंथ यूज़ करते हैं तो इसमें भी हम सिक्योरली अपने मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक और जो एडवांटेज है कि जो स्ट्रीम साइफर है वो ब्लॉक साइफर को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ नहीं करते, और इस वजह से जो स्ट्रीम साइफर हैं वो एज कंपेयर टू ब्लॉक साइफर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसमें कम कोड के ज़रिए हम इंक्रिप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। हम जो अभी इस चैप्टर में सेक्शन में डिस्कस करेंगे RC4 एल्गोरिदम, तो इस एल्गोरिदम को हम चंद लाइन ऑफ कोड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो इससे ज़्यादा जो सिक्योर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है वो AES है, और वो भी जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम उसको 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हार्डवेयर एक्सेलरेशन टेक्निक्स हैं जो AES की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटेल है उसमें इंटेल AES इंस्ट्रक्शन सेट है जिसमें ऑलरेडी बिल्ट इन मशीन इंस्ट्रक्शन है जो एक राउंड की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और उसकी जो की जनरेशन है वो परफॉर्म करती हैं। अब जब हम हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें वो डिलेस नहीं होते, इसमें वो टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता जो किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में और फिर उसके ऑपरेंड को रीड करने में और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होती है। ब्लॉक साइफर का एक एडवांटेज ये था कि आप उसमें जो कीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर दो प्लेन टेक्स्ट जो इनक्रिप्ट किए जाते हैं विद द सेम की और उसमें हम स्ट्रीम साइफर यूज़ करते हैं तो उसका जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर two blocks of plain text are used with the stream cipher using the same key, then crypt analysis is a quite simple thing. If two ciphertext streams are XORed together, the result is the XOR of the original plain text. If the plain text are text strings, credit card number, or other byte streams with known properties, then crypt analysis may be successful. For applications that require encryption, decryption of a stream of data, such as over a data communication channel or a browser web link, a stream cipher might be the better alternative. For applications that deal with blocks of data, such as file transfer, email, and database, block cipher may be more appropriate. However, either type of cipher can be used in virtually any application. तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो एक स्ट्रीम ऑफ डेटा की करनी है, जिस तरह हमारे पास कोई डेटा कम्युनिकेशन का चैनल है, कोई वायरलेस लिंक है, या कोई टेलीविज़न का चैनल है जिसके ऊपर वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही है, या कोई लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जहाँ पे कंटिन्यूस हमारे पास स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है, तो वहाँ पे हमें एक बेटर ऑल्टरनेटिव इंक्रिप्शन की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ब्लॉक ऑफ डेटा आता है या बर्स्टी डेटा आता है, जहाँ पे जिस तरह फाइल हमने ट्रांसफ़र करनी है, किसी सर्वर पे डेटा अपलोड करना है या वहाँ से डाउनलोड करना है, या वहाँ पे जो चंक्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड करना है और उनको अपलोड करना है, ईमेल सर्वर है या इवन डेटाबेस सर्वर है, तो वहाँ पे ब्लॉक साइफर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। बहरहाल दोनों तरह के साइफर किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं।
एक ही एप्लीकेशन के लिए स्ट्रीम साइफर भी यूज़ किया जा सकता है और ब्लॉक साइफर भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके करेक्टरिस्टिक को और कॉन्टेक्स्ट को देख के अप्लाई किया जाए तो स्ट्रीम साइफर की अगर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसके रिजल्ट और एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी एज कंपेयर टू ब्लॉक साइफर से। तो स्ट्रीम साइफर में हम डिस्कस करते हैं RC4। RC4 जो है वो एक स्ट्रीम साइफर है। RC4 को 1987 में रॉन राइवस्ट ने डिज़ाइन किया था और ये रॉन राइवस्ट बिलोंग करता था RSA सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेशन से।